So, hello everyone, I welcome you all to ET Inspiring Leaders 2024. And today we have Dr. Upasana Arora with us, who is the CEO and Managing Director of Yashoda Medicity. Hi, ma'am, how are you? Namaskar. I'm good. Yeah. Yeah. Okay. So my first question would be कि medical field है इतना challenging sector है ये तो आपका driving force क्या था इसको join करने के लिए and how long for you in the industry? So it's 3 decades I am here. 3 decades. Yeah. Long time. But I would like to tell that I lost my parents when I was very young. I was 10 when I lost my father, and before my marriage I lost my mother. And reason behind this, that time healthcare was not this kind of that you can go anywhere and you will find everything under one roof. It was only, doctor based practices, some small clinics, or you have to go to some medical colleges. Right. So that time I was thinking that I will become an IAS officer. Okay. So this much I was aware that IAS officers can change many things in society. The power you were Power. thinking about. And I was preparing for that when I lost my mother. Unfortunate, same day she got all 3 heart attacks, and I just. I'm so sorry to hear. So I was totally orphaned that time, you can say, because I don't have any How real old brother. were you if you I don't was know? 22. So I thought, I will do something, but that time when you don't have real brother, uncle, or any male You're member. a single child? I have a sister, she was married. Okay. And that time females were not that empowered that they can say that my sister will stay with me. Yeah. So anyhow, I married and I stayed at home. But when I am so lucky that I married to a man who was already running a hospital by the name of Yashoda. And Oh, Yashoda okay. is my mother-in-law. Okay. Yeah, and she was a cancer patient. So that time there was no hospital in Ghaziabad. And not even in Delhi, there were not so many facilities, only government hospital. For cancer patients particularly? Yeah, or not only cancer, I should say this much of, advanced technology was not Were not available. there. And my husband was used to take his mother to Tata Cancer. Okay. So when she expired, so he decided to do something for the Ghaziabad people. Okay. So we started actually in 88, but we were able to launch in 1990. Okay. So this was the starting of Yashoda, and after that when I joined, so I tried to put all my efforts for all the whatever new in the industry, I wanted to put everything in Yashoda. Okay. That is how my journey started, and now I am sitting with you. Yeah, no, I mean that's again a very inspiring story क्योंकि जिस तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस बताया तो कितने साल तो अपने मेंटल स्टेट को ठीक करने में ही लग जाते हैं टू स्टार्ट anything fresh, right? So and it happened for you after marriage where you your husband was like a lucky charm for you in that Yeah, case. I must accept this. Yeah, he'll be happy after watching this. जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत थैंकलेस टाइप का थोड़ा प्रोफेशन रहता है, हालांकि पीपल आर डिपेंडेंट ऑल्सो Yes. ना, सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते हैं कुछ भी होता है तो, बट दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि हर डॉक्टर अपनी तरफ से तो बेस्ट कोशिश ही करेगा ना Yes. हर किसी को बचाने के लिए, बट फिर वो पर्सनल अफेयर बन जाता है लोगों का, अगर द पर्सन इज नॉट वेल तो उस हिसाब से लोगों के ओपिनियन हो जाते हैं. तो इस तरीके के एटमॉस्फेयर में आप लोग खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं एंड एवरी डे यू आर वर्किंग विद द सेम माइंडसेट अगेन? सो दैट्स अगेन अ बिग चैलेंज. आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट के बारे में अगर बात करें. So actually, if you see my journey, it was not a bed of roses. राइट. And as I told you before that when I lost my mother, so situation was that my maternal uncle, he said that I am not going to leave you, or within 13 days जो 13वीं वाला होता है, I have just sell off everything and I was with my maternal uncle. But you can see the destiny that I am here with the Yashoda. So I strongly believe in God and spirituality. And if you visit my hospital, somebody who has visited, they can feel the difference. Okay. So I am trying to create a place where everyone has to feel, because hospital nobody is coming happily. जो आता है दुख में आता है. It
creates a negative Yeah. environment. So then I'm with the trying to energies. remove that kind of atmosphere. I am just trying to create a place where everybody will feel like that it's a calming and soothing place. For that हम लोग ओम बजाते हैं and कपूर जलाते हैं खुशबू के लिए, so that The positive negativity हट जाए. energies. हाँ, पूजा होती है, भगवान को पहले भोग लगता है, और साथ में बिल्कुल स्किल डॉक्टर रखती हूँ मैं, जो बिल्कुल आप कहिए डीएम है तो डीएम की रिक्वायरमेंट है तो डीएम रखेंगे, एमडी की रिक्वायरमेंट है तो एमडी. जितने टेक्नीशियंस हैं हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि ट्रेंड करे हुए रख लिए कहीं से. विदाउट एनी डिग्री और सर्टिफिकेट वी डोंट कीप एनीवन, एंड रिगरस ट्रेनिंग इज आल्सो देयर. बट इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ होती है, वो है पर्सनल टच. राइट. सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो अगर आप कह रही हैं जो ना ये थैंकलेस जॉब, वो इसीलिए बिकॉज देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, Patients. एंड देयर इज नो पर्सनल टच. बेड नंबर सो एंड सिस्टर एंड ब्रदर. सो हम लोग बाय नेम बुलाते हैं. हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो रेगुलर विजिट पे होता है. जैसे मैं आज भी मैं रैंडम चेकिंग पे जाती हूँ. जैसे आज भी मैं ऑल ऑफ सडन विदाउट एनीवन आई विजिटेड अ पेशेंट, and it's not only VIP wards या super deluxe rooms, I am going to general wards also. हमने एक कोशिश करी है एक माहौल बनाने की जिसमें पेशेंट ऐसा महसूस करे कि वो घर से दूर होकर भी घर में है. Alive. Yeah. And same time staff has to be happy. क्योंकि क्या है ना, ये एक थ्योरी है मैकाले की कि ऊपर से नीचे तक चलता है. साइकिल पूरा है. तो अगर मैं हमेशा नाराज रहूंगी, अगर मैं हमेशा डांटूंगी, तो वो नीचे आते आते अंत में कौन आता है, वो है पेशेंट. सो आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीवन फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड Right. with their work atmosphere and whatever their requirement. So that is why I have a open door policy. जिसका भी मन हो, फोर्थ क्लास स्टाफ भी मेरे पास डायरेक्टली आता है, and they can come and they can share their problems. हम सब ह्यूमन बीइंग You are हैं. directly accessible to them. इट्स नॉट लाइक कि अरे मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं या चेयरमैन सर हैं. एनीबडी कैन गो एंड टेल. छोटी सी ज़रूरतें होती हैं हर एक की, पेशेंट्स की भी. बट डॉक्टर्स आर कॉम्पिटेंट, दे आर डूइंग गुड सर्जरी. अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल व्हाट ही इज डूइंग. सो आई एम एक्चुअली इन क्वालिटी, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द इन्फेक्शन. Okay. That is why हमारा HAI मतलब hospital acquired infection rate is very low. Same time we are following all the quality norms, and I think if somebody who is keeping patients safe, that is the mantra of success of a hospital. Right. And you will get lots of blessings from others when they Yes. are going back. So हमारे यहाँ काफ़ी VIPs आते हैं. We can't name anyone, but Delhi के जो भी who हैं, they are coming because they have faith in Yashoda. Right. And I'm like, whoever is the patient, again, भाई negative aspect हटा के, भाई जैसे आपने बात करी, तो बहुत सारे लोगों की blessings भी होती है. Yeah. Right, जो बच रहे हैं, और फिर वो लाइफ टाइम आपका कनेक्शन उनके साथ बना रहता है. They'll keep you in mind कि हाँ, they have saved our lives. आप देखिए ना, जनरेशन्स आ रही हैं हमारे यहाँ. जिनके माँ बाप आते थे, उनके बच्चे आए, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चे हमारे यहाँ बॉर्न हो रहे हैं. So these you people things- started in 1990. 90. हाँ. सो अब उससे ना एक फेथ है, और लोगों को मुझे हमेशा, बल्कि समटाइम्स आई फील लाइक कि मुझे एक टैग लाइन बनानी चाहिए, यशोदा भरोसा बरसों का. हाँ, है ना? I mean, yeah, you practice that, so you can say that. Also, मैम, अगर इस फील्ड में को कुछ इंडिविजुअल्स एंटर करना चाहते हैं, लाइक क्वालिफिकेशन एंड डिग्री ऑब्वियसली हैज़ टू बी देयर, बट अगेन किस तरीके का माइंडसेट उनको लेकर एंटर करना चाहिए, कि क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, और किस तरीके से वो अपने पेशेंट को, मतलब फिजिकली सिर्फ ट्रीट नहीं, मेंटली भी ट्रीट करना इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या एक इंडिविजुअल को माइंड में रखना चाहिए? देखिए, अगर आप हेल्थ केयर ज्वाइन करते हैं, एक तो मैं उनके लिए भी कहती हूँ जो हेल्थ केयर को लाइक हॉस्पिटल जो बनाना चाहते हैं, उनको भी मैं कहती हूँ कि डोंट रन अ हॉस्पिटल ऑन एज ए बिजनेस मॉडल. Because to run a hospital, you need to have some sympathy, Right. some empathy, and you need to understand the problem. Because economy हमेशा आप नहीं देख सकते. If somebody is not having money, what you will do? You Right. can't throw him out of your hospital. तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर जो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, they should not not a think money that हाँ, making सिर्फ model. मनी मेकिंग नहीं है. दूसरा, जो आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं, अगर आपके अंदर एक कहते हैं ना, हम लोग की हिंदी में कहावत है, नर सेवा नारायण सेवा, जिसके अंदर सेवा की भावना हो, उसको ही अस्पताल में आना चाहिए.
क्योंकि अब हमारे यहाँ मान लीजिए कोई गुस्से में है बाई चांस, अब भाई पेशेंट का फादर बीमार है, ओपीडी में लंबी लाइन है, उसको 1 घंटा इंतज़ार करना है, सो वहाँ पे देन एंड देयर यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ यू नो माइंड सेट कि तुम खुद देखो कि अगर ये गुस्सा कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है। तो यू कांट बिहेव लाइक अदर्स। ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा साइकोलॉजी जिसकी अच्छी हो और जो लोगों की सचमुच मदद करना चाहता हो। मैं आपसे शेयर करूंगी, मेरे साथ जो लोग हैं वो शुरू से हैं, दे आर पिलर ऑफ द हॉस्पिटल, जो मेरे सीनियर जितने भी हैं, तो दे अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ दिस हॉस्पिटल। तो जब नए लोग ज्वाइन करते हैं तो दे आर ऑलरेडी, दे कैन सी, दे कैन फील द डिफरेंस अगर वो कहीं और से आते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो ये कल्चर है जो मुझे लगता है टॉप मैनेजमेंट को डेवलप करना चाहिए, और जो आना चाहता है हेल्थ केयर में उसको सबसे पहले तो अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। हाँ, दूसरे का गुस्सा हैंडल करने के लिए पहले खुद पे कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि वही मैम एंटर तो बहुत लोग कर जाते हैं बट सस्टेन करना दैट इज अगेन बहुत मुश्किल होता है, राइट। सो मुझे लगता है आपको ना हमेशा समझना चाहिए, जो मैं हमेशा अपने स्टाफ को जब भी एड्रेस करती हूँ तो कहती हूँ कि वी आर सो लकी कि हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। आप अपनी ब्रेड भी अर्न कर रहे हो, रोजी रोटी भी कमा रहे हो, साथ के साथ आप लोगों की सेवा भी कर रहे हो, जो हम लोग का धर्म कहता है कि ऊपर जाके सब चीज़ों का फल मिलता है। मुझे नहीं पता ऊपर कुछ है या नहीं, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि अगर आप यहाँ अच्छा काम करते हैं तो आपको यहीं पर सारा फल मिलता है उसका। जी नहीं, बिल्कुल। और वही है कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी हावी नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि जब आप पेशेंट के साथ हो तो वही आपकी एक तरीके से पर्सनल लाइफ है। जी तो मैम दिस ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट क्वेश्चन कि आप यशोदा मेडिसिटी को नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ देखते हैं, और कुछ भी अगर आप नया इंट्रोड्यूस करें। डू यू पीपल प्रोवाइड एनी कोर्सेज आल्सो? या हमारे यहाँ DNB रन हो रहा है, हमारे क्रिटिकल केयर पे फेलोशिप हो रही है, और हमारा IVF सेंटर है दिल्ली में, और अभी जो मैं मेडिसिटी बना रही हूँ दैट इज़ अ यूनिक प्लेस। आई रियली विश इफ़ यू हैव टाइम टू विजिट, बिकॉज हमने ये हॉस्पिटल एक ऐसा बनाया जो अपने आप में एक बहुत अलग तरह की जगह है। रीज़न बिहाइंड दिस, हम जो भी काम करते हैं, मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड बता दूँ, हम पेशेंट नीड्स पे करते हैं। जब हम काम करते हैं तो हमें पता चलता रहता है पेशेंट को क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो मैं अपना अस्पताल उसी हिसाब से चलाती हूँ। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो गोल्डन आवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली स्ट्रोक और हार्ट, समटाइम ये जो हमारे ट्रॉमा केसेस होते हैं इमरजेंसी। तो हमने पूरी रेडियोलॉजी अपनी 2 रेडियोलॉजी सेटअप्स बनाए हैं। एक तो जो नॉर्मल रेडियोलॉजी सब जगह होती है, उसमें MRI CT सब लगा है। हमने अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी पूरा रेडियोलॉजी और ICU भी बनाया है 12 बेड का। अच्छा। सो इफ समबडी इज कमिंग विद सम सीरियस प्रॉब्लम, सो डोर टू निडल का टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा, आपका सारा टेस्ट वहीं हो जाएगा। सो आपको यू नीड नॉट टू टेक योर पेशेंट, सारा बैकअप आपने वहीं पे क्रिएट कर रहा। सो वो वहीं पे हम उनके टेस्ट भी कर लेंगे, और अगर इफ दे नीड ICU केयर तो वी विल एडमिट देम देयर। उसके अलावा फिर हमने अपना 252 बेडेड ICU अलग बनाए हैं मॉड्यूलर, एंड 20 OTs हैं मॉड्यूलर। हमारा जो सेंटर है उसमें रोबोटिक की ट्रेनिंग का सेंटर बन रहा है, दा विंची का। एंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, क्योंकि किडनी और लिवर तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, कौशाम्बी में भी, वहाँ पे हार्ट लंग। रादर आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैंने तो अपने ऑर्गन डोनेशन 12 साल पहले की है, लेकिन अभी इस तरफ अगर मैं कहूँ नॉर्थ इंडिया साइड में अभी भी ऑर्गन डोनेशन बहुत कम है। अवेयरनेस नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता कि इसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा है। हम बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी देते हैं। तो मेरा अपना मानना है, आज से 5 साल बाद मैं ये देखती हूँ, अगर मैं आज तक ईश्वर की कृपा से मेरा सारा सपना सच हुआ है, तो आगे भी मैं ये देखती हूँ कि यशोदा एक ऐसा नाम बन रहा है, यशोदा मेडिसिटी, जो लोग याद रखेंगे यहाँ की सर्विसेज के लिए, क्योंकि अंडर वन रूफ यू विल फाइंड, हम इसमें टिश्यू प्रिजर्व करेंगे, इसमें बोन प्रिजर्व करेंगे, इसमें हम जीन थेरेपी करेंगे, सब वॉट एवर इज पॉसिबल वी विल डू। तो नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा अस्पताल नहीं है कि 1200 बेड एक साथ अंडर वन रूफ हो, जिसमें इतनी सारी सुविधाएं हों। साथ ही साथ हमने लिनैक्स जो लगाए हैं, क्योंकि कैंसर आप सुनती हैं आजकल हर घर में, हर चौथे घर में एक प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए हमने उसकी ना 4 लिनैक्स अंडर वन रूफ लगाई हैं। अच्छा। जो एक साथ साउथ ईस्ट एशिया में एक साथ कोई भी नहीं लगाता। हर अस्पताल एक लिनैक्स से शुरू करता है, बिकॉज इसमें पैसा बहुत लगता है जी। एंड ऐसा नहीं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके डॉक्टर्स, इसके टेक्नीशियंस,
एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव, इवन इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑल एवरीथिंग। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप जैसे हमारा हॉस्पिटल ट्रांसपेरेंसी के लिए ही जाना जाता है, और आगे इसमें भी हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो आए वो खुश होके और स्वस्थ होके और सुखी होकर जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इट्स लाइक थैंक यू सो मच लाइक फॉर बीइंग हियर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लाइक keeping up the good work which you have, and you have a very positive aura that way. Thank you so much. Thanks for calling me. Thank you. Okay.